Hello students, today we are going to start chapter number 5 of class 8 data handling. This video is going to be an introduction video. So let us start with what is data. The information collected in the context of a situation that we want to study in all our day-to-day life cases is called data. There are numerous examples where we can see the usage of data. For example, if we want to find out the average height of students in a class, or the marks scored by the students in any subject, runs made by a batsman in the last 10 test matches, or the number of storybooks read by each student of any class, etc. अब जैसे मैं अगर यहाँ पे numbers लिख देती हूँ, suppose 10, 20, 25. So right now these numbers are not telling us any kind of information. Okay, but if I say that these numbers are actually the number of storybooks read by 3 students of a class, then definitely these 3 numbers will be termed as data. मतलब जब तक numbers के साथ में कोई information associate नहीं की जा रही है, तब तक उनको हम data नहीं बोलेंगे. Data मतलब numbers associated with certain kind of information, right? Now, in our previous classes, we have already learnt about the graphical representation of data, जिसमें हमने pictograph, bar graph और double bar graph के बारे में पढ़ा था. Now, let us give a quick review to these 3 kinds of graphical representation. The first one is what? A pictorial representation of data, that is known as a pictograph. मतलब जहाँ पे हम पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं किसी नंबर को डिनोट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक कार का पिक्चर 100 कार्स को डिनोट कर रहा है. अब इस ग्राफ से, इस पिक्टोग्राफ से हमको 3 अलग अलग मंथ्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है कार्स का रिप्रेजेंट हो रहा है. ओके, सो इस रिप्रेजेंटेशन से हम कई सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो डेफिनेटली वी कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2 complete pictures of car are there and one picture is half. It means 100, 100 and 50. That is 250 number of cars were produced in the month of July. Now in second question is what? In which month were the maximum number of cars produced? So आप clearly देख सकते हो September month में 4 pictures का use हुआ है. Means what? 100, 100, 100 and 100. That is 400 number of cars were produced in the month of September. So if we compare the 3 months, in the July month 250 cars were produced, in the month of August 300 cars were produced and in the month of September 400 cars were produced. So किस month में सबसे ज़्यादा cars produce हुई थी? That is September only. Okay, now let us see what is the bar graph. A bar graph is a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the respective values. मतलब हमारे पास bar graph में हम rectangular bars का use कर रहे हैं जिनकी एक fixed width होती है और उनकी जो हाइट है वो उनसे जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होती है. मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. ओके, अब इस बार ग्राफ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हमें ये पता चल रहा है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास 8 इन the session 2003-2004, in session 2004-2005, in session 2005-2006, in session 2006-2007, and in session 2007-2008. Now, the question is being asked over here that in which year is the increase in the number of students maximum? मतलब किस year में सबसे ज़्यादा increase हुआ था in the number of students? Okay, तो again what do we have to do? We have to compare the heights of the bars drawn. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है बार्स की हाइट में वो आया है सेशन 2003-2004 से लेकर के 2004-2005 तक. ओके, तो इस मैक्सिमम डिफरेंस को देख करके हम बोल सकते हैं कि सेशन 2004-2005 में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे. तो आप देख सकते हो, आप सारे बार्स की हाइट को कंपेयर करो तो आप क्या देखोगे, सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो लास्ट सेशन की है जो कि 2007-2008 है. और क्योंकि इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम है तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप डेफिनेटली बोलोगे यहाँ पे 2007-2008 सेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में.
ओके और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिया जाएगा तो आप सिंपली बता सकते हो 350 स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास 8 इन दिस पर्टिकुलर सेशन. Fine. Let us now see what is a double bar graph. So double bar graph is a bar graph showing two sets of data simultaneously. It is useful for comparison of the data. मतलब जहाँ पे हम एक ही फ्रेम में दो अलग अलग बार ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कंपैरिजन के लिए, तो डेफिनेटली उस बार ग्राफ को हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे दो बार ग्राफ्स को यूज किया गया है. नाउ if we see the questions associated to this particular bar graph, so what is the information given by the bar graph shown over here? तो आप देख सकते हो it is showing the maximum marks obtained by the student in various subjects in the session 2005-2006 and in the session 2006-2007. तो ये दो बार ग्राफ दो अलग अलग सेशंस के लिए एक ही फ्रेम में शो करे गए हैं ताकि हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें, एनालाइज कर सकें. तो आप देख सकते हो जो वाइट कलर के बार्स हैं वो सेशन 2005-2006 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ग्रे कलर के बार्स हैं वो 2006-2007 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट. तो अगेन हम बार की लेंथ को कंपेयर करेंगे और जहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देगा वहीं पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट होगा. तो आप देख सकते हो कि मैथ्स में दोनों साल के परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन हाइट इन दोनों बार्स में आया है. आप बाकी डिफरेंसेस को देखोगे तो ये सारे डिफरेंसेस इसके कंपैरिजन में कम है. तो डेफिनेटली वी कैन से दैट इन मैथ्स the performance has improved the most. Now there is another question, in which subject has the performance deteriorated, मतलब किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गिरी है. तो आप देख सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट में 2006 वाले सेशन में 2005-2006 वाले सेशन में परफॉर्मेंस बेटर थी और 2006-2007 वाले सेशन में परफॉर्मेंस उसकी डिटोरिएट हुई है. ओके तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हुई है. और भी क्वेश्चंस इसमें हम पूछ सकते हैं जैसे किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है, कांस्टेंट रही है, तो वो हम बोल सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट में बिकॉज दोनों बार्स की हाइट यहाँ पे सेम है. बहुत से और क्वेश्चंस इससे हम एसोसिएट कर सकते हैं, इस ग्राफ को देखते हुए उनको आंसर भी कर सकते हैं. Let us now see what are different kinds of data. So basically data are of two types, raw data and grouped data. What is raw data then? A random collection of information in the initial phase is called raw data. मतलब जब हम initial phase में कोई भी collection कर रहे हैं information का तो वो raw data कहलाएगा. It is obtained from direct observation. Basically जो direct observation से होता है collection उसको हम बोलते हैं primary data. प्राइमरी डेटा बोला जाता है उसको. और जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा. ओके अब प्राइमरी डेटा मतलब जब हम डायरेक्टली जा करके डायरेक्ट किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेटा हो गया. और जब हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट है मतलब हम न्यूज़पेपर्स का हेल्प ले लें, इंटरनेट का हेल्प ले लें या फिर किसी दूसरे सोर्स का हेल्प लें, डायरेक्टली जा करके ऑब्जर्वेशन कलेक्ट ना करें तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी डेटा. बट दोनों केसेस में ये जो इनिशियल फेज में कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा है उसको हम रॉ डेटा ही कहेंगे. नाउ इट इज़ यूजुअली अवेलेबल इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मतलब उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनग्रुप्ड डेटा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स was asked for their favorite subjects. मतलब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हमने उनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे. अब यहाँ पे आप देखो ये प्राइमरी डेटा का एग्जांपल होगा बिकॉज हम डायरेक्टली जा करके उनसे इंक्वायर कर रहे हैं कि विच इज़ देयर फेवरेट सब्जेक्ट. तो जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, इस फॉर्म में मिला. अब क्या आपको यहाँ से कोई खास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या ये बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है? नो. बस ये इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाई जा रही है बिकॉज ये बता रही है कि कौन सा सब्जेक्ट किस किस बच्चे ने प्रिफर किया. ठीक है, बट इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे नहीं मिल रही है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा विच इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. नाउ द ग्रुप्ड डेटा. When raw data is classified in groups in order to draw meaningful inferences,
देन इट इज़ नोन एज ग्रुप डेटा। मतलब जब हम उसी पर्टिकुलर डेटा को ऑर्गेनाइज कर दें ताकि कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें उससे मिले, तो हम उसे बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा। ओके, नाउ कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हैं, जैसे कि टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो व्हाट इज टैली मार्क? It is a symbolic representation of occurrence or repetition of an observation in a table। मतलब जो भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो जब रिपीट होगी तो जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार हम उसके लिए एक मार्क बनाएंगे। जनरली हम पहले बार जब वो ऑब्जर्वेशन आती है तो हम एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करते हैं, then again we draw another line when it is repeating twice, then thrice, and then fourth time. After fourth time if it is repeating itself, then we use a cut symbol like this। मतलब फोर्थ सिंबल के बाद में, फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बाद में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जब आएगी, वही सेम फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगी तो हम यहाँ पे कट मार्क लेते हैं ताकि ये हमें काउंटिंग करने में आसानी हो। अगर आप सिंपली ऐसे मार्क्स बनाते जाओगे तो इनको काउंट करने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम ग्रुप्स ऑफ 5 बनाते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये ग्रुप ऑफ 5 होगी। अब इसके बाद में अगर हम ऐसे बनाते हैं तो डायरेक्टली 5 + 3 8, हमें इंडिविजुअली सारे बार्स को काउंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर सारे टैली मार्क्स को काउंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ग्रुप्स ऑफ 5 में हम उसकी काउंटिंग कर पाएंगे। सो दीज आर नोन एज टैली मार्क्स। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of times a particular observation repeats itself or occurs in the given data is called frequency of the observation। मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाएं जो हमने रॉ डेटा के केस में लिया था, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 जो है वो कितनी बार आया है। तो अगर मैं उसके लिए टैली मार्क बनाऊँ, पहले 8 के लिए एक टैली मार्क, दूसरे 8 के लिए दूसरा टैली मार्क, तीसरे 8 के लिए तीसरा टैली मार्क, चौथे 8 के लिए चौथा टैली मार्क, फिर फिफ्थ 8 के लिए मैं कट मार्क बनाऊंगी। देन अगेन वी आर हैविंग 8 सब्जेक्ट, देन अगेन वी आर ड्राइंग अ टैली मार्क फॉर दिस, देन अगेन वी आर हैविंग अ टैली मार्क फॉर दिस। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 5 + 2 7 टाइम्स 8 रिपीट हुआ है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हम अगर उसके लिए टैली मार्क बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसको बताएगी कि कितनी बार 8 रिपीट हुआ, तो वो 7 टाइम्स रिपीट हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। राइट नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि दूसरा टर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब द टेबल मेड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म शोइंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंट्री अकर्स इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब जहाँ पे हमने डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है वहाँ पे हमने टैली मार्क्स को भी यूज़ किया हुआ है और फिर उस टैली मार्क्स से कितनी फ्रीक्वेंसी आई उस फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट किया हुआ है, तो उस तरीके के टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर्स इन अ बैग। मतलब कोई बैग है हमारे पास में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, सपोज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन्स हैं, तो कितने कलर्स के कितने पेन्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे पर्पल में आप देखोगे 4 टैली मार्क्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी 4। येलो इज व्हाट having 7 tally marks, so it means what, it is representing frequency 7. Red is again 7 frequency, and again for green we are having 6 frequency। ब्लू के लिए फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, ऑरेंज के लिए फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है। तो आप देख सकते हो इस टाइप की टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। राइट नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन a large amount of raw data is represented by making groups or class intervals and obtained a frequency distribution of the number of observation falling in each group। क्योंकि frequency distribution table अगर हम बहुत ज़्यादा amount of data के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत बड़ी टेबल को रिप्रेजेंट कर देगी और वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल बनाना भी कोई फ्रूटफुल नहीं है। दैट इज़ वाई वी गो फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे कि क्लास इंटरवल।
अब क्लास इंटरवल क्या होता है? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर क्लासिफाइड इन सेवरल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, देन दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। जैसे कि अगर हमें पता है कि 0 से 10 के बीच में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो हम इस क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्लासेस जो होती हैं हमारी इस तरीके की होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 11 से 20 एक्सेट्रा। तो अगर हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर है, वो सपोज 15 है, तो वो 10 टू 20 वाली क्लास में आ जाएगा। एज सच हम फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन को, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ अब इन क्लासेस में एक टर्म आता है दैट इज लोअर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट क्या होगा? जैसे क्लास हमने ले ली सपोज 0 से 10, तो इसमें लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी हमारी 0, मतलब जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर हम 10 टू 20 वाला क्लास देखें तो लोअर क्लास लिमिट होगी हमारी 10। देन अपर क्लास लिमिट इज द हाईएस्ट नंबर इन एवरी क्लास इंटरवल। जैसे कि 0 से 10 में 10 है अपर क्लास लिमिट और 10 टू 20 में 20 है अपर क्लास लिमिट, राइट? अब विड्थ क्या होती है इन क्लासेस की, या फिर वी कैन से दैट साइज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उस क्लास इंटरवल का। तो द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे कि अगर हम 10 टू 20 ले लें तो यहाँ पे आप देखोगे अपर क्लास लिमिट है 20, लोअर क्लास लिमिट है 10, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10, तो 10 इस क्लास का साइज हो जाएगा, राइट? नाउ क्लास इंटरवल्स भी दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल? द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, एंड here only lower limit is inclusive and the upper limit is exclusive। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इन सारी क्लासेस में आप देख सकते हो कि जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो दूसरी जो कंसेक्यूटिव क्लास है उसकी लोअर लिमिट बन रही है, पहली चीज़ ये। और एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि लोअर लिमिट इज इंक्लूसिव, मतलब अगर हम इस क्लास को देखेंगे तो यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू काउंट होंगी, 10th वैल्यू जो है इस क्लास में काउंट नहीं होगी। 10th वैल्यू इस वाली क्लास में काउंट होगी क्योंकि वहाँ पे वो उसका लोअर लिमिट है। अपर लिमिट को यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे। जैसे 20 जो है वो सेकेंड क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा, वो थर्ड क्लास में चला जाएगा क्योंकि थर्ड क्लास में वो लोअर लिमिट है। तो इस तरीके के क्लास इंटरवल्स में जो लोअर लिमिट होती है वो काउंट होती है, अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल में क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डज नॉट कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, बोथ आर डिफरेंट। मतलब जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की वो दूसरे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं बनेगी, जैसे कि कंटिन्यूस के केस में हो रहा था। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा होगा 11 टू 20, 21 टू 30, 31 टू 40। अब आप देख सकते हो पहला जो क्लास इंटरवल है ये है 11 से 20 और उसका नेक्स्ट वाला 21 से 30 है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 11 से लेकर के 20 तक की सारी वैल्यूज इस क्लास में काउंट हो जाएंगी और 21 से 30 तक की नेक्स्ट क्लास में काउंट होंगी, एंड अकॉर्डिंगली 31 से 40 लास्ट क्लास में काउंट हो रही हैं। मतलब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूसिव है, मतलब दोनों को ही हम काउंट ले रहे हैं। और पिछले वाले केस की तरह ऐसा नहीं है कि अपर लिमिट को दूसरे क्लास में काउंट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास की है वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट नहीं है, इसीलिए वो फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल में ही काउंट होगी। सेकंड क्लास इंटरवल में 21 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, राइट? नाउ क्लास मार्क क्या होता है? जो क्लास है हमारी, जो अभी हमने पढ़ी क्लास इंटरवल्स है, उसका मिडिल वैल्यू, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। अब वो कैलकुलेट कैसी होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो जैसे कि अभी हमने एक क्लास इंटरवल लिया था 10 टू 20, अब इसमें लोअर लिमिट क्या है 10, ओके, अपर लिमिट क्या है 20। तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 20 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो 15 इस पर्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क बोला जाएगा, ओके। So these were the important terms related to the grouped frequency distribution table. Now let us take an example. अब इस example में क्या है? Out of 50 marks हमने लिखे हुए हैं एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में by 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब क्लास 8 के 60 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखे हैं, जबकि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। इससे हमें कोई खासा इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है, बस हमें इतना पता है कि ये जो मार्क्स हैं वो क्लास 8 के 60 स्टूडेंट्स के हैं, जो कि आउट ऑफ 50 दिए गए हैं मैथमेटिक्स में।
नाउ अब आप देखोगे, इसके लिए अगर हम एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल्स डिसाइड करने हैं। तो क्योंकि जो मार्क्स थे हमारे आउट ऑफ 50 थे, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हमने कैसे करनी है, हमें टेलीमैक्स का यूसेज करना है। तो जैसे 21 आया, तो 21 के लिए हम 21 किस वाले क्लास में जाएगा, आप देखोगे 21 जाएगा इस क्लास में, तो हम इसके लिए एक टेलीमार्क यहाँ पर बना देंगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 10, 10 आपका किस में जाएगा, आपका सेकेंड क्लास में जाएगा, सेकेंड क्लास इंटरवल में जाएगा। देन 30, 30 विल गो इन दिस क्लास interval. Then accordingly 22, then we can see that 22 will go in this class interval. Then 33, 33 will go in 33 will go in this particular class interval. Then आप देखोगे कि 5 जो है, 5 किस क्लास इंटरवल में आएगा, 5 डेफिनेटली इस क्लास इंटरवल में आएगा। देन 37, 37 यू कैन सी ये जाएगा इस क्लास इंटरवल में। ओके, नाउ 12 जो है, 12 किस में जाएगा, 12 आपका जाएगा सेकेंड क्लास इंटरवल में। ओके, 25 किस में जाएगा, 25 आपका जाएगा इस क्लास इंटरवल में। तो इसी तरीके से आप सारे टैली मार्क्स बना लोगे, तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ इस तरीके का टेबल मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो 0 से 10 के बीच में 2 मार्क्स आए, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 10 से 20 के बीच में आप देख सकते हो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 20 से 30 के बीच में यू कैन सी दैट 1 2 3 4 4 5 20 एंड प्लस 1 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 30 से 40 के रेंज में आप देख सकते हो 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 40 से 50 के रेंज में आप देख सकते हो कि 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और 50 से 60 के बीच में 1 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखना, 50 टू 60 के रेंज में 1 स्टूडेंट का बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, यू कैन सी ओवर हियर 50। ओके, केवल एक वैल्यू है जो 50 है, क्योंकि हमने बोला हुआ था कि आउट ऑफ 50 मार्क्स दे रखे हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। क्योंकि 50 जो है वो हम इस वाले क्लास इंटरवल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं मार्क कर सकते हैं, इसीलिए उसके लिए हमें ये नेक्स्ट क्लास भी बनानी पड़ी, ताकि हम 50 को काउंट कर सकें। क्योंकि 50 यहाँ पे लोअर लिमिट बनेगी, इस वजह से उसकी काउंटिंग यहाँ होगी। तो आप देख सकते हो ऑल टुगेदर 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिए। सो दिस इज़ व्हाट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप आपको सारे टर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पता चल चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग ऑफ क्लास 8th।